Hello everyone, welcome to World Student Scope. My name is Prembada and in this session we are going to start with chapter number 2 of class 6, that is components of food. So basically इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं कि food कितने कितने तरीके के होते हैं and उनमें क्या क्या components हमें मिलते हैं. ठीक है, very interesting chapter, बहुत मजा आने वाला है. So let us now begin with our chapter. Alright, so first of all let us understand what are the components of food. ठीक है, so yes, we eat variety of fruits, vegetables, grains and legumes. All of us eat to get the energy we need for everyday's activity. है ना, हम कितने तरीके के फूड खाते हैं डेली बेसिस पे. We eat fruits, we eat vegetables, we eat grains and we eat legumes of various types. And ये सब खाने के बाद हमें क्या मिलता है, हम क्यों खाते हैं सारा कुछ? Since we get energy from all these food items, so we eat all of these foods. Now each of the various food components is necessary for our body to carry out a variety of cellular activities. Now we know that our body is made up of cells. तो ये जितने भी आपको बॉडी के अंदर, आपके स्किन के अंदर कुछ भी मिलेगा, any component that you will find interesting, तो वो होगा cells. Alright, cells. Now cells की वजह से ही हमारी बॉडी में जितनी functioning होती है, it is only and only because of the cells. So to maintain that cellular activities, we need various kinds of food and we eat the same. So, okay, we also have various type of food that we are going to eat. For example, sweets, dairy, eggs, vegetables, nuts and seeds, fruits, vegetables, whole grains, legumes and soy. All these food items जो हम daily basis पे consume करते हैं. Alright, clear till here? तो ये कुछ है components of food that we are going to study about. So let us now see further what we have in our topics. Alright, a meal could consist of chapati. अगर हम मील की बात करते हैं कि जो आप ब्रेकफास्ट में खाते हो, लंच में खाते हो, डिनर में खाते हो, तो उसमें कुछ भी हो सकता है. लेट्स सपोज इट कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी हो गया, अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर. सो एक इमेज आपको मील की एक प्लेट में आपको दी हुई है. तो हमने क्यों बेसिकली दिखाया हुआ है? बिकॉज दिस इज अ हेल्दी मील. इट इज अ हेल्दी मील दैट वन शुड ईट ऑन डेली बेसिस. बट ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम पे ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी एक ही तरीके का खाना खाना. नो, यू हैव टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे. ऑलराइट, टू मेंटेन दैट बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट्स दैट यू नीड फॉर योर बॉडी. राइट, नाउ let us see when we are going to perform an activity that is given in your NCERT about the different types of food. So the question is, why do we need different types of food? कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाने की जरूरत पड़ती क्यों है? Why do we have to do that? So the answer is very simple, that our body needs different components and nutrients. आपको पता है हमारी बॉडी में कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, एंड कंपोनेंट्स आपको पता है, न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स एंड उसके अलावा वी हैव न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन्स, fats, vitamins, right, minerals, etc. Alright, so all these are nutrients that we require in our body, and उसकी requirement पूरी करने के लिए we eat different kinds of food on daily basis, right? So these different components are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. ये different components कौन कौन से होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए. नाउ दीज कंपोनेंट्स आर अवेलेबल ओनली थ्रू डिफरेंट फूड सोर्सेज. यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ है. सी, अगर बाय चांस हमें ये बोला होता कि आप सेम फूड डेली खाओ, तो वहां पे लिख दिया होता कि हाँ सेम फूड एवरी डे. बट सिंस वी रिक्वायर डिफरेंट फूड, क्योंकि आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये आपको डिफरेंट फूड आइटम्स के थ्रू ही मिलेंगे. ठीक है, सो एक छोटा सा टेबल भी है आपको दिया हुआ एनसीईआरटी में. लेट अस ट्राई कंप्लीटिंग इट. So your table has 5 columns. First one is the region or state. Second is item of the grains that they are asking. And third is item of dal or meat. Fourth one is the vegetables that we are eating. And last one is the others, any other item. So दो examples आपको already given हैं यहाँ पे. तो first example में क्या है? Region आपको बोला है state पंजाब. वहाँ पे item of grain जो मिलता है that is मक्के की रोटी खाते हैं ना पंजाब में. So वो. Second we have राजमा भी होता है, जो आइटम्स जो हम दाल में बना लेते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज किडनी बीन्स. थर्ड वेजिटेबल दे हैव सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी, या एंड फिर उसके बाद कर्ड, घी कितना खाते हैं पंजाब में, एंड कर्ड दे लव अ लॉट.
eating curd and ghee is their favorite. So that is how we have to make out कि हर state में क्या क्या चीज़ें famous है, items of grain, items of dal, vegetables and any other item which is famous. And second example we have of the state Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में जो आइटम ऑफ ग्रेन सबसे ज़्यादा खाई जाती है वो है राइस. उसके अलावा आइटम्स ऑफ दाल में वी कैन इंक्लूड तुअर दाल और रसम विच इज़ वेरी टेस्टी. खट्टे मीठे खट्टा सा टेस्ट होता है रसम का एंड उसको हम खाते हैं राइस के साथ जनरली. एंड साउथ में इट इज़ मोर फेमस. उसके अलावा वेजिटेबल्स में है कुंदरू, डोंडाकाई जो आंध्रा की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे ईट बटर मिल्क, घी एंड पिकल. ऑलराइट, सो एक कॉलम आपको ऑलरेडी गिवन है तो इसमें हम अपना ऐड कर सकते हैं. वी कैन ऐड आवर स्टेट. सो लेट अस ऐड महाराष्ट्र हियर. महाराष्ट्र, ठीक है. महाराष्ट्र में आइटम ऑफ ग्रेन जो है सबसे ज्यादा फेमस दैट इज व्हीट, ठीक है. एंड आइटम ऑफ दाल में बेटा आ जाता है बेसन. बेसन के भी बहुत सारे वहां पे डिशेस बनते हैं. इट इज वेरी फेमस. वेजिटेबल्स में दे ईट पोटैटो, a lot of potatoes which is one of their favorites, and others में they consume sauce, ठीक है. इसके अलावा अगर आपको और कोई states पता है तो you can note down that also, and इसकी जगह अगर आपको कोई और example पता है तो you can note down that as well. and अगर आपको और ज़्यादा examples लिखने हैं या आपको note down करने हैं, आपको mention करना है of any other states तो that also you can do. And this activity is actually very interesting. You can discuss it with your friends, you can discuss it with your teachers and your parents. Yeah? So let us now move forward. Okay. Now the next topic is what do different food items contain? कि हमने तो देख लिया कि हाँ यार हम बहुत सारे items खाते हैं, different चीजें खाते हैं daily basis पे, लेकिन इसमें होता क्या है ना? So let us find out. All living things require food as a basic necessity. सबके लिए नेसेसरी है फूड, है ना. अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए फूड रिक्वायर्ड है. अगर कोई लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड नहीं कंज्यूम करता तो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म मे डाई. यस, सो इट सप्लाइज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग टिपिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. फिजियोलॉजिकल फंक्शंस सच एज रनिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, लिसनिंग. तो ये सभी तरीके की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए वी रिक्वायर फूड एज अ बेसिक नेसेसिटी. यस, and each one contains various nutrients. and सभी food items जो भी हम consume कर रहे हैं, obviously we are talking about healthy food items, so all of them have different various nutrients, right? so they all combine to give us nutritious nourishment. उन सब में nutrients present होते हैं and वो हमें क्या provide करते हैं? they provide us with the nourishment. clear till here? okay, example देख लेते हैं बेटा. for an instance, प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स पहले सबसे हम प्रोटीन्स को देख रहे हैं. सो प्रोटीन्स कैन बी फाउंड इन दाल, एग्स, मीट एटसेट्रा, ठीक है. प्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन्स किस में होते हैं? दाल में होते हैं, एग्स में होते हैं, मीट में होते हैं. उसके अलावा अगर हम विटामिन्स की बात करें तो हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं बेटा. विटामिन्स का एग्जांपल है हमारे पास. दीज आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो विटामिन्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? आपको फ्रूट्स में मिल जाते हैं विटामिन्स. यू कैन गेट विटामिन्स इन द वेजिटेबल्स. उसके अलावा वी हैव ओट्स, लेंटिल्स, सीरियल्स. दीज आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इनमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. आप सीरियल्स की बात कर लो, ओट्स की बात कर लो, लेंटिल्स की बात कर लो, ठीक है. अब बात देख लेते हैं फैट. बेटा फैट किसमें आपको मिल जाएगा? फैट कैन बी फाउंड इन घी, बटर, चीज, पिग, चॉकलेट्स, लार्ड एंड एटसेट्रा. यहाँ पे एटसेट्रा हम लिख देते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर फाउंड इन फैट. जितनी भी चीजें सब्सटेंसेस होते हैं ना चीज से बने हुए, सो ऑल दैट यू कैन फाउंड in every cheesy substances, घी, बटर, चीज, पिग, चॉकलेट, all those contains the fats. ये आपके पास इमेज है बेटा. ये एक फूड आइटम्स की आपके पास इमेज है जिसमें आपको एग्स दिख रहे हैं, मीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं आपके पास. उसके अलावा पोटैटोज हैं. ऑलराइट, सो एंड ब्रेड इज ऑल्सो देयर. तो ऑल दीज फूड आइटम्स, मतलब दिस इज द कलेक्शन ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स दैट इज शोन हियर. इन सभी में न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स हैं, ठीक है, जो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं. प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. ऑलराइट, लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड टू द एक्टिविटी नंबर 2. एक्टिविटी नंबर 2 में बेसिकली हमारे पास है बेटा कि हमें पता है कि फूड आइटम्स कंटेन्स स्टार्च.
they have proteins, they have fats, but how do you know that कि किस फूड में कौन सा आइटम प्रेजेंट है, कौन से फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, कौन से फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कौन से फूड में फैट्स प्रेजेंट है. तो इन सबको डिटरमाइन करने के लिए वी डू वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च. तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं? वी आर परफॉर्मिंग इट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ऑलराइट, हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ स्टार्च. ठीक है, तो आपने कोई भी फूड आइटम ले लिया. ठीक है, लेट्स सपोज हमने कोई भी फूड आइटम, लेट्स सपोज हमने मैश्ड पोटैटोस ले लिया. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? वी ट्रीट फूड, जो भी आपने फूड आइटम सेलेक्ट किया है, वी ट्रीट फूड विद आयोडीन सोल्यूशन. आपने ये याद रखना है कि जब भी हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं, तो उसमें हम हमेशा आयोडीन सोल्यूशन लेते हैं. ऑलराइट, सो वी ट्रीट फूड विद आयोडीन सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये बात आपने याद रखनी है. यहाँ पे आपको आयोडीन सोल्यूशन याद होना चाहिए कि आप टेस्ट ऑफ स्टार्च के लिए आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हो. ऑलराइट, एंड वंस यू पुट द ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द फूड, जब भी आप आयोडीन का सोल्यूशन आप फूड पे डालते हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो वैसे तो जनरली आयोडीन सोल्यूशन इज कलरलेस. अगर आप आयोडीन सोल्यूशन लेते हो तो आप देखोगे कि आयोडीन कैसा होता है? कलरलेस होता है. लेकिन जब आप उसको फूड आइटम्स पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, तो अगर तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, इफ इट हैज स्टार्च, देन इट विल टर्न ब्लू. इट विल टर्न ब्लू. तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कैसी प्रेजेंस होती है? स्टार्च में आपको क्या मिलेगा? आयोडीन सोल्यूशन ब्लू कलर का. ठीक है, तो यहां देख लो बेटा, आपने जैसे फूड आइटम्स इसमें मिक्स कर दिए पानी में, ये भी आपने मैश करके यहां पे भी फूड आइटम डाला है. ठीक है, यहां पे भी आपका फूड आइटम है. ठीक है, अब अगर तो ये इसमें स्टार्च नहीं है, तो इसमें ब्राउन या येलो कलर रिटेन रहेगा, जो फूड का कलर होगा, जो भी रहेगा वो यहाँ पे रिटेन हो जाएगा. बट अगर तो स्टार्च प्रेजेंट है, अगर तो फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, देन दिस विल बी टर्न्ड इनटू ब्लू और पर्पल कलर, इंडिकेटिंग, शोइंग दैट दिस हैज स्टार्च इन इट. इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये टेस्ट ऑफ स्टार्च जो है ये आपके सिलेबस में है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. इसमें जो मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, इसमें जो आपको याद रखना है वो आयोडीन सोल्यूशन है, बिकॉज आयोडीन सोल्यूशन की वजह से ही आपको पता लगता है इफ दैट फूड आइटम हैज स्टार्च और नॉट. ऑलराइट, ओके, नाउ वी हैव टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स. अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि किस फूड आइटम में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं? राइट, तो हमने क्या लेना है? फूड आइटम लेना है. ठीक है, जिसमें पॉसिबली प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, एंड नो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो प्रोटीन्स हैं और कॉपर सल्फेट जो है सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं क्यूप्रिक आयंस. ये बस आप याद रखना है आपको, क्योंकि आपको वो आयनिक फॉर्म्स आपके सिलेबस में अभी नहीं है. ठीक है, वो आपको लेटर क्लासेस में आएंगे, बड़ी क्लासेस में आएंगे. तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि प्रोटीन्स और कॉपर सल्फेट जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म क्यूप्रिक आयंस और कॉपर. क्या प्रोड्यूस करते हैं? कॉपर. So the reaction between cupric ion and caustic soda produces a violet color. आपने क्या करना है कि प्रोटीन्स पे पहले आपने प्रोटीन्स का सब्सटेंस लिया है, उस पे आपने कॉपर सल्फेट के साथ उसको रिएक्ट किया है. कॉपर सल्फेट डालोगे तो रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करेगा? दैट विल फॉर्म अ कॉपर. एंड जब आपका एक बार कॉपर फॉर्म हो गया, जब आपने इसको पहले कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा दिया, उसके बाद आप उस पे डालोगे कॉस्टिक सोडा. तो फर्स्ट स्टेप में बेटा आप डाल रहे हो कॉपर सल्फेट, सेकेंड स्टेप में यू आर यूजिंग कॉस्टिक सोडा. तो द मोमेंट यू put caustic soda on proteins which is already got reacted with copper sulfate, then it will produce a violet color. तो प्रोटीन्स के प्रेजेंस के लिए बेटा इंडिकेशन कौन सी आपको याद रखनी है? वॉयलेट कलर. ठीक है, एंड आपने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए याद किया था ब्लू कलर. हेयर प्रोटीन्स के लिए आपको वॉयलेट कलर नजर आ जाएगा जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करोगे, टेस्ट करोगे. तो ये टेस्ट हम करते हैं लेबोरेटरीज में, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में हम ये टेस्ट करते हैं. ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि इस फूड में कितना अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है. ठीक है, इससे हमें फिर डॉक्टर्स भी हमें रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आपको ये फूड आइटम कितने ज्यादा अमाउंट में खाना चाहिए कि आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिले, प्रोटीन ज्यादा मिले. तो इस वजह से हम टेस्ट ये सारे परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा, प्रोटीन्स एंड कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कॉपर, फर्स्ट स्टेप. उसके बाद ये जो
क्यूप्रिक आयन है जो कॉपर फॉर्म हो चुका है, उसमें अगर आप कॉस्टिक सोडा और ऐड कर दोगे तो दैट विल प्रोड्यूस अ वॉयलेट कलर. द मोर प्रोटीन प्रेजेंट द मोर इंटेंस द कलर. जितना ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होएगा उस फूड आइटम में उतना ज्यादा कलर आएगा, जितना कम प्रोटीन प्रेजेंट होएगा उतना कम कलर आएगा. समझ में आ गया? सो फॉर एन इंस्टेंस, हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं. जस्ट द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉइल्ड एग. सिर्फ जो व्हाइट पोर्शन होता है बेटा, एग आपने देखा होगा ना, एग में एक तो व्हाइट कलर का पोर्शन होता है, फिर एक येलो कलर का यॉक होता है. तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एग्जांपल के उसमें लिया हुआ है जस्ट द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉइल्ड एग will turn pink if the two solutions are applied. The yellow portion solely contains fat. तो क्या होगा बेटा कि ब्यूरेट टेस्ट में आप देखो, जब आप ये एग है, एग में येलो पोर्शन जो होता है वो यॉक होता है, ठीक है. तो व्हाइट पोर्शन बेटा पिंक टर्न हो जाएगा जब आप कौन से सॉल्यूशंस यूज करोगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज करोगे. एंड व्हाट एल्स विल यू यूज? कॉस्टिक सोडा. क्योंकि पिंक कलर आ रहा है बेटा, इट मींस कि प्रोटीन्स कितना है, मिनिमल अमाउंट में प्रेजेंट होता है. प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं नो डाउट उसमें, तो आपको पिंक कलर आ जाएगा. तो इससे आपको ये पता लग जाएगा दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एग. वेयर एज जो योक है ये फैट, इसमें फैट होता है, तो ये इसमें वॉयलेट कलर या फिर पिंक कलर आपको नहीं नजर आएगा क्योंकि इसमें प्रोटीन्स नहीं होते. समझ में आ गया? तो बेटा इसकी प्रेजेंस के लिए, प्रोटीन्स को डिटरमाइन करने के लिए हम करते हैं ब्यूरेट टेस्ट, ठीक है. इसमें अगर प्रोटीन्स हैं, इसमें अगर आप सॉल्यूशंस डाल रहे हो कोई भी, तो अगर ब्लू कलर आता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा कि इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है. वेयर एज अगर डीप पर्पल कलर आता है तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो कलर बेस्ड आपको याद रखना पड़ेगा. कलर बेस्ड आपके सारे ये टेस्ट हैं कि आपको आयोडीन में कैसा कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिखता है एंड डीप पर्पल दिखता है इन केस ऑफ प्रोटीन्स. एंड आपको ये दो सॉल्यूशंस के नाम याद रखने हैं, फर्स्ट कॉपर सल्फेट, सेकंड कॉस्टिक सोडा. राइट, अब आगे चले. यस, सो अब हमारे पास है टेस्ट ऑफ फैट्स. व्हाट डू वी हैव? टेस्ट ऑफ फैट्स. तो फैट्स के कैसे पता लगता है बेटा? फैट्स किस में होते हैं पहले तो आप ये समझ लो. फैट्स आर प्रेजेंट इन घी, चीज में होता है एंड ऑयल में होता है, एटसेट्रा. ठीक है, इनमें फैट्स प्रेजेंट होते हैं. तो बेटा फैट्स के लिए आप देखो, घी, चीज, ऑयल्स कितनी ऑयली चीजें हैं, है ना, ऑयली चीजें. तो इनका टेस्ट बहुत आसान है. फैट्स को डिटरमाइन करना इज वेरी इजी. उसके लिए आपने सीधे सीधे क्या लेना है, एक पीस ऑफ पेपर ले लिया और एक और पीस ऑफ पेपर ले लिया. इस पे आपको ड्रॉप ऑफ वाटर डाल देना है, यहां पे आपको ड्रॉप ऑफ ऑयल डाल दिया, घी डाल दिया, चीज डाल दिया, जो भी डाल दिया. ठीक है, एंड वेट फॉर सम टाइम. अब देखो जैसे यहां पे भी दिया हुआ है, एक में हमने डाल दिया है स्पॉट, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ऑयल डाल दिया है, ठीक है, एंड यहां पे स्पॉट ऑफ वाटर तो ऑलरेडी है. एंड वेट फॉर सम टाइम. तो कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे कि जो वाटर है ये ड्राई हो जाएगा, ये सूख जाएगा, तो आपको पेपर एज इट इज मिल जाएगा, प्लेन मिल जाएगा. वेयर एज जब आप ऑयल को रहने दोगे कुछ टाइम बाद, सो द पेपर विल बिकम ट्रांसलूसेंट. ये पेपर कैसा दिख जाएगा? ट्रांसलूसेंट, जिसके आप आर पार क्लियरली नहीं देख सकते. जैसे ट्रांसलूसेंट आपको पता है ना, जो हेजी दिखता है, जब आप अगर किसी सब्सटेंस के, किसी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अगर आप उस पार देखना चाहते हो तो वो आपको हेजी नजर आता है. तो आपको ऐसा ही हेजी अपीयरेंस नजर आएगा ऑन द पेपर. समझ में आ गया? सो दैट मीन्स कि दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पेपर विल अलाउ लाइट पार्शियली. लाइट उसमें से पार्शियली क्रॉस करेगी एंड आपको स्पॉट नजर आएगा, ग्रीसी स्पॉट नजर आएगा. आप जैसे घी लग जाता है पेपर में, आपने देखा भी होगा, तो घी का निशान जाता नहीं है ना, वो वहीं पे रिटेन रहता है, वो ग्रीसी स्पॉट वहीं रहता है. तो बहुत आसान है ये पता लगाना कि अगर तो ग्रीसी स्पॉट रिटेन हो गया पेपर में, कि पेपर में आपको ग्रीसी स्पॉट नजर ही आ रहा है, इट इज नॉट गोइंग अवे, इट इज नॉट ड्राइंग आउट एज कंपेयर टू द स्पॉट ऑफ द वाटर. So it means that it will be confirmed that this particular food item has fats. तो ये भी पता लगाना is very easy for us. Alright? Now, अब आपके पास एक टेबल है. तो ये टेबल हमें क्या डिटरमाइन करता है ये टेबल बेसिकली, कि यहाँ पे आपको फूड आइटम्स, आपके पास 4 कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम आपके पास है फूड आइटम्स का. सेकंड आपको पूछा है कि यहाँ पे इफ दैट फूड आइटम हैज स्टार्च. थर्ड में आपको पूछा है इफ दैट फूड आइटम कंटेन्स प्रोटीन्स. एंड लास्टली आपको पूछा है इफ दैट फूड आइटम कंटेन्स फैट्स.
ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रॉ पोटैटो को ट्रीट करते हैं बेटा तीनों टेस्ट में, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, तो वी विल फाइंड आउट दैट इट विल टर्न इनटू ब्लू, कंटेनिंग या कंफर्मिंग दैट इट हैज स्टार्च इन इट. सेकेंड, आप मिल्क को ट्रीट करते हो तो मिल्क विल certainly turn violet, deep purple, confirming that it has proteins in it. Third, we have groundnut. Groundnut में बेटा अगर आप उसको ट्रीट करोगे, ग्राउंडनट को अगर आप तीनों के साथ ट्रीट करते हो तो आपको ये नजर आ जाएगा सिंपली कि जो पीस ऑफ पेपर है उस पर ये ग्रीसी स्पॉट छोड़ेगा, सो दैट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन इट. ठीक है, अब ये कुछ फूड आइटम्स हमें ऑलरेडी गिवन है एंड 3 कॉलम्स छोड़े गए हैं जिसमें हमें अपनी तरफ से फूड आइटम्स ऐड करने हैं and we have to determine if they contain starch, proteins or fats. All right, so let us see now. तो first one is the uncooked powdered rice. तो बेटा अगर हम राइस को ट्रीट करते हैं तीनों टेस्ट के थ्रू तो यहाँ पे आपको प्रेजेंस जो मिलेगी वो स्टार्च के मिलेगी, तो हमने स्टार्च वाले कॉलम में यस लिख दिया. ठीक है, उसके बाद हम कुक्ड राइस देखते हैं. बेटा कुक्ड राइस को अगर आप ट्रीट करते हो तीनों से, स्टार्च का भी टेस्ट करते हो, प्रोटीन्स का करते हो, फैट्स का टेस्ट करते हो, तो यहाँ पे भी आपको स्टार्च की प्रेजेंस मिलेगी. थोड़ी कम मिलेगी क्योंकि कुकिंग के टाइम क्या होता है, जब आप फूड कुक कर देते हो तो कई न्यूट्रिएंट्स जो है वो लूज कर जाता है फूड, कई न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसलिए जो अनकुक्ड राइस है उसमें आपको स्टार्च का फिर भी ज्यादा अमाउंट मिल जाएगा, बट अगर आप वही राइस कुक कर दोगे तो वहां पे स्टार्च का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट प्रेजेंट होता जरूर है स्टार्च. ऑलराइट, अगर अब हम बात करते हैं ड्राई कोकोनट की, तो ड्राई कोकोनट को अगर आप ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा फैट का प्रेजेंस. आप इसको पेपर के साथ ट्रीट करके देखोगे तो you'll find out that it will leave the greasy spot on the paper. उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा अनकुक्ड तुअर दाल की. तो अनकुक्ड तुअर दाल में बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च इज देयर, थोड़ा सा अमाउंट स्टार्च का होता है एंड ज्यादा अमाउंट होता है प्रोटीन्स का. ज्यादा अमाउंट किसका होता है? प्रोटीन्स का. एंड सेम विथ कुक्ड दाल. कुक्ड दाल में अगर आप स्टार्च हटा दो, क्योंकि कुकिंग के टाइम क्या होता है कई न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट दाल का जो चीफ एलिमेंट होता है, जो चीफ न्यूट्रिएंट होता है दाल में जो प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रोटीन्स. तो यहाँ पे आ जाएगा कि प्रोटीन्स की प्रेजेंस इसमें है. अगर आप इसको टेस्ट परफॉर्म करोगे, टेस्ट में के थ्रू देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट इट विल हैव प्रोटीन्स. उसके अलावा स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल. अब स्लाइस आप देख लो वेजिटेबल, तो उसमें आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च मिल जाएगा. यस, क्योंकि आपको पता है कि फूड आइटम जब ग्रो करता है, जब प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं फूड, तो वो स्टार्च के रूप में जो फूड है वो प्रिजर्व करके रखते हैं इन द वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल भी एक तरीके का फ्रूट ही है दैट ग्रोज ऑन द प्लांट. यस, सो यहाँ पे भी स्टार्च की प्रेजेंस आपको मिल जाएगी. स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, इट विल ऑल्सो हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च. इसमें भी आपको थोड़ा सा अमाउंट स्टार्च का मिल जाएगा, तो यहाँ पे स्टार्च के टेस्ट की प्रेजेंस आपकी कंफर्म हो जाएगी. उसके अलावा बॉइल्ड एग व्हाइट पोर्शन, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, दैट दी जो व्हाइट पोर्शन है बॉइल्ड एग का, दैट विल कंटेन प्रोटीन्स. तो यहाँ पे हमने इसको यस कर दिया. उसके अलावा देख लेते हैं बेटा, उसके अलावा अगर आप फूड आइटम डेली यूजेस में हम ब्रेड खाते हैं, तो अगर आप ब्रेड को ट्रीट करोगे विद स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो you'll फाइंड आउट दैट इट विल हैव स्टार्च. तो यहाँ पे हमने यस लिख दिया. ओके, अब उसके अलावा इफ वी टेक चीज, अब आप चीज ले लो. चीज भी हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते ही हैं, है ना. तो चीज अगर आप ले लो, तो चीज को अगर आप ट्रीट करोगे तो आपको सिंपल मिल जाएगा फैट का प्रेजेंस, क्योंकि चीज कैसा होता है, ग्रीसी मटेरियल होता है. एंड इफ यू पुट इट ऑन द पेपर, दैट विल लीव अ ग्रीसी स्पॉट, कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड. राइट. उसके अलावा इफ यू टेक मीट, मीट भी हम खा लेते हैं, तो मीट में बेटा सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन्स होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च. बट हम यहाँ पे प्रोटीन्स पे जोर देंगे क्योंकि मीट में सबसे ज्यादा प्रेजेंस होती है प्रोटीन्स की. ऑलराइट, तो ये हमारा टेबल हो गया. इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड यस, सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर टिल हियर. उसके बाद जो आपके चैप्टर रिमेनिंग चैप्टर है दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग. ये सब कुछ आपने याद करना है, नोट्स टाइम टू टाइम बनाने हैं, एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.